Good morning, students. Hope you all are fine and you people are studying well at your home. So today I'll start with the last chapter of your civics. Okay, this is the last chapter, that is outcomes of democracy. If you have gone through the revised syllabus, you will see that few chapters have been omitted. So this is the last chapter that is there in your syllabus, chapter number 7, outcomes of democracy. I'll start with it. Overview is that we are about to end up the tour of democracy, and now you all would have understood that what is a democratic form of government, what are the outcomes, what do we expect from a democratic form of government, and do you think that democracy fulfills whatever it promises. Okay, so now we'll start with the chapter. The first topic is that how do we need to assess the democracy's outcomes, that is how do you evaluate, आप कैसे इवेलुएट करेंगे कि डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हुई भी या नहीं. सो डू यू रिमेंबर हाउ स्टूडेंट्स इन मैडम लिंडो क्लास आर्ग्यूड अबाउट डेमोक्रेसी. दिस वाज इन चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9th टेक्स्ट बुक. नाउ द ऑथर इज अ बिट ऑब्लिवियन. इसे पता नहीं है कि आप लोग चैप्टर अपने 10th की चैप्टर की बातें तो याद नहीं रख रहे हैं, आप लोग 9th की कैसे याद रखेंगे, इजंट इट. तो ऑथर को ये पता नहीं है, बट ऑफ कोर्स वी आर योर टीचर्स, वी नो दैट आप लोग कितने पानी में हो. Anyways, that was only for humor. Yes, you people are studying a lot at your home. That's a good aspect. But there are some students जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं. Okay, so you people have sent your copies, and while we are correcting those copies, we are under an impression that there are some students who are not studying at all, and they have just copied their answers from the reference book. Anyways, let's get back to the class. So it emerged from that conversation that democracy is a better form of government when compared with dictatorship or any other alternative. See, I'll tell you, maybe we say that democracy is the best form of government, but it is only best because whatever we have available, जो अभी हमारे नेशन वाइड ग्लोबली जो अवेलेबल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में हैं उनमें वो बेस्ट है. हो सकता है इससे भी कोई बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, बट आप इसको कंपेयर करिए डिक्टेटरशिप से, आप इसको कंपेयर करिए मोनार्की से, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रीडम हमें डेमोक्रेसी में अवेलेबल है. सो दैट इज़ वाई वी से दैट इट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. वाई? द फर्स्ट थिंग, इफ़ यू सी, इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन. ऑफ कोर्स इफ़ यू गो थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 14 to 18, 14 से 18 तक सारी बात ही इक्वालिटी की गई है. Equal opportunity in public employment, equal opportunity in access to public places, prohibition of untouchability, prohibition of titles. What is this? This is to build an equal platform for all the citizens of the country. Enhance the dignity of the individual. Article 14 to Article 32 gives fundamental rights, explicit fundamental rights. What is that? It is enhancing the dignity of the individuals. It improves the quality of decision making. Why? Because people are the one who elect the legislators. Okay, so we are electing directly the people who would be taking decision for us. And other than this, democracy involves a method of participation, and because of this participation, the decision making mechanism works well. It provides a method to resolve conflicts. If there is any conflict, of course we have judiciary, that is the apex organization, to look into if anything goes wrong. It allows room to collect mistakes. आपने किसी गवर्नमेंट को इलेक्ट किया, वो गवर्नमेंट आपके हिसाब से काम नहीं कर रही है, तो आपके पास बिल्कुल मौका है ना, 5 years के बाद आप उन्हें निकाल दीजिए रूल से. पहले एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार में बहुत करप्शन था, तो लोगों ने क्या किया, 2014 में उनको रिजेक्ट कर दिया. वी गेव अ चांस टू अ न्यू गवर्नमेंट, लेट अस सी हाउ इट फंक्शंस. 2014 to 19 उन्होंने अच्छा काम किया था, लोगों ने फिर उनको इलेक्ट कर लिया. Now we don't know what will happen in the next election. Okay, so this is how we evaluate the outcomes of democracy. So are these qualities realized under democracies? And when you will talk to people as in general, there will be two sections of people, one who would support democracy and the other who would not support democracy. And then there are certain people who say that democracy is seen to be good in principle but felt not to be so good in its practice. That is, ये जो सारी हमने अभी अच्छी अच्छी बातें की हैं, ये सारी बातें जो हैं वो पेन एंड पेपर में है, लेकिन इसका इतना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है.
मतलब सुनने में अच्छा लगता है कि इक्वालिटी है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, बट अगर हम ग्राउंड रियलिटी पे आए तो इतनी भी अच्छी नहीं है चीज़ें जितनी सुनने में लगती हैं या जितना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. Okay, over 100 countries of the world today claim and practice some kind of democratic politics. They have formal constitutions. तो democratic country में constitutions होते हैं. They hold elections, they have parties and they guarantee rights of citizens. तो बेसिकली आप जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज देखेंगे उनके ये जो फेनोमेनन है, वी कैन सी दीज फेनोमेना दैट दे हैव अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं रेगुलरली, वहाँ पे पार्टी सिस्टम है और वहाँ के सिटीजन्स को राइट्स दिए जाते हैं. नाउ दीज फीचर्स आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ देम, बट दीज डेमोक्रेसीज आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल सिचुएशन, their economic achievements and their culture. So if let us compare two countries, China and India. चाइना भी बोलता है कि हम लोग डेमोक्रेटिक सेटअप है, इंडिया भी बोलता है कि हम लोग डेमोक्रेटिक सेटअप हैं, बट लुक एट द डिफरेंस. इनके सोशल सिचुएशंस बहुत डिफरेंट है, इकोनॉमिक अचीवमेंट्स बहुत डिफरेंट है. चाइना इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, सुपर पावर है. इंडिया सुपर पावर आज भी नहीं है, आज भी वो डेवलप्ड कंट्री के कैटेगरी में नहीं आता है. हमारे कल्चर और उनके कल्चर में भी डिफरेंस है. जितना राइट टू फ्रीडम हम लोग इंजॉय करते हैं ओवर डेमोक्रेटिक हो जाते हैं, उतना राइट टू फ्रीडम चाइना में नहीं है. तो ज़रूरी नहीं है कि कोई कंट्री अगर डेमोक्रेटिक है तो उन सब के फीचर सेम होंगे. नंबर ऑफ टाइम इट डिपेंड्स ऑन द बैकग्राउंड कि वो सोसाइटी, वो कंट्री इवॉल्व कैसे हुई है. इट डिपेंड्स ऑन दैट ऑल्सो. ओके, क्लियरली व्हाट मे बी अचीव्ड और नॉट अचीव्ड अंडर ईच ऑफ these democracies will be very different. So that is it. So just because it is a democratic country तो कोई defined features नहीं है. इट डिपेंड्स आपकी कंट्री का बैकग्राउंड कैसे रहा, वो जो इवोल्यूशन है आपकी कंट्री की, इंडिपेंडेंस आपने कैसे अटेन किया, उसके बाद कैसे वहाँ के सिटीजन ने रिस्पॉन्ड किया, वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स कैसे थे, वहाँ की गवर्नमेंट कैसी थी जिन्होंने चीज़ों को हैंडल किया, कितने वो लोग कंट्रोल कर पाए, कितने वो लोग डिक्टेटोरियल थे और दे वेंट ओवर डेमोक्रेटिक, या लोगों ने डेमोक्रेसी का मजाक बना दिया. दिस ऑल एक्चुअली डिफाइंस कि उस पर्टिकुलर कंट्री में डेमोक्रेसी कैसे फंक्शन करती है. Our interest in and fascination for a democracy often pushes us into taking a position that democracy can address all socio-economic and political problems. So this is what people feel कि democracy एक magic wand है, एक magic form of government है and it can address all socio-economic and political problems. In some of these our expectations are not met. So we start blaming the idea of democracy. See, democratic form of government is not a magical form of government. ये भी एक collaboration है, collaboration between people and government. So for every little thing we cannot look towards government. People have also to be participative. तो हमें ऐसा लगता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर है तो सारी सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं है. और नहीं कुछ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सरकार को ब्लेम करते हैं या हम डाउट करने लगते हैं. ओके, सो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स थिंकिंग केयरफुली अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज टू रिकॉग्नाइज दैट डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. Okay, it is just a form of government. It can only create conditions for achieving something. Now the role of the citizens come over here. The citizens have to take advantage of those conditions and they have to achieve those goals. Okay, I hope I am clear up till here. So there are three terms: accountable, responsive and legitimate. So first I'll discuss this. Accountable means answerable, क्योंकि हमने उन्हें इलेक्ट किया है, हमने वोट दिया, आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, हमने इलेक्ट किया तो आप हमें आंसरेबल हो, आपके एक्शन के लिए आप हमें आंसरेबल हो. तो हमें आंसरेबल हो मतलब क्या हो, अकाउंटेबल हो. रिस्पॉन्सिव, अगेन द सेम, यू नीड टू रिस्पॉन्ड टू आवर डिमांड्स, आर कंप्लेंट्स. एंड लेजिटिमेट का मतलब होता है लीगल. व्हेन समथिंग इज बाय द मीन्स ऑफ लॉ तो हम उसे बोलते हैं लीगल. ओके, देयर आर सम थिंग्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड. सबसे पहला है कि गवर्नमेंट को या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है वो ये है कि गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल. ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है. ओके, इन अ डेमोक्रेसी वी आर मोस्ट कंसर्न्ड विद इंश्योरिंग दैट पीपल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर एंड पीपल हैव कंट्रोल देयर रूलर्स. मतलब सबसे पहला है राइट टू वोट. एंड वेन एवर पॉसिबल एंड नेसेसरी सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. वेन एवर नीडेड एक ऐसा मैकेनिज्म, जैसे आजकल ये मैकेनिज्म है by the means of internet, number of times the laws are there on the official sites of the government. कोई भी policy, I must not say law,
कोई भी पॉलिसी इनैक्ट होने से पहले कुछ टाइम के लिए उनके ऑफिशियल साइट पे रहती है, यू कैन पार्टिसिपेट एंड गिव योर सजेशंस. Of course they are not bound by your suggestion, but at least it gives a hint of participation. Okay, and इससे क्या होगा? It produces a government that is accountable to the citizen and responsive to the needs and expectation of the citizen. बहुत सारे mechanism हैं जिससे आप गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा सकते हो. ओके, वन ऑफ द बिगेस्ट फेनोमेनन इज राइट टू इन्फॉर्मेशन. आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, तो वो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाती है, वो अकाउंटेबल बढ़ाती है. Okay, some people think that democracy produces less effective government. It is of course true that non-democratic rulers do not have to bother about deliberation in assemblies or worry about majorities and public opinion. See, it is true कि जो non-democratic rulers हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि people उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो वो quick decisions ले सकते हैं. लेकिन क्विक डिसीजंस हेस्टी डिसीजंस हैं, वो वन मैन लिया हुआ डिसीजन है, एक ग्रुप ने लिया हुआ डिसीजन है. जब उसमें आपने पीपल को पार्टिसिपेट नहीं कराया, पीपल का व्यू नहीं लिया, तो उससे पीपल का वेलफेयर कैसे होगा? तो इट इज़ ट्रू कि डेमोक्रेसी में डिसीजंस थोड़े लेट से होते हैं, बट एटलीस्ट इसमें सबका जो है वो ओपिनियन तो लिया जाता है. तो लेस इफेक्टिव नहीं है, वी कैन से इट इज़ टाइम टेकिंग. तो कभी कभी अच्छी चीज़, इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी ह्यूज कंट्री है, इतना पॉपुलेशन है, तो टाइम टेकिंग तो होगा ही, कम से कम लॉन्ग टर्म तो होगा नेचर में. ओके, सो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिबरेशन एंड नेगोशिएशन, दैट इज डिस्कशन. So some delay is bound to take place. Does that make democratic government inefficient? No, not at all. So let us think in terms of cost. Imagine कि एक गवर्नमेंट है जो बहुत फास्ट डिसीजन लेती है और वो डिसीजन पीपल एक्सेप्ट नहीं करते हैं क्योंकि पीपल को प्रॉब्लम हुआ, वो उन्होंने हेस्ट में डिसीजन लिया तो वो डिसीजन वेस्ट हो गया. अब क्या होगा? उस डिसीजन को वापस लेंगे तो उतना टाइम, इतना रिसोर्सेज, इतना एनर्जी उनमें लगा, जो कॉस्ट इफेक्टिव हुआ वो तो सारा पानी में चला गया. तो बेटर क्या है कि डिसीजन आप लीजिए, टाइम टेकिंग डिसीजन लीजिए, सिटीजन का पार्टिसिपेशन कीजिए ताकि सिटीजन को भी पता चले कि उनके राइट्स क्या हैं, वो सिटीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनके पास फुल मैकेनिज्म होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी का. नाउ इन दिस केस द डिसीजन वुड बी लॉन्ग टर्म इन नेचर और पीपल उसको ज़्यादा एक्सेप्ट कर पाएंगे. तो एक्सेप्ट करेंगे तो इफेक्टिव हो जाएगा वो लॉ. और क्योंकि आपने सबके पार्टिसिपेशन से बनाया, सबकी उसमें साझेदारी थी, तो दे नो व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द लॉज. एंड एट लास्ट बिकॉज दे हैव इलेक्टेड यू, यू डेफिनेटली स्टैंड अकाउंटेबल टू द पीपल. सो आई होप आई एम क्लियर अप टिल हियर. सो इन द नेक्स्ट concluding class we'll try to finish up the chapter. Thank you students, we'll meet again.